Hello students, this is Pratiksha Shukla and today we are going to learn about the three equations of motion. First we will learn what are the three equations of motion, then we will learn how to derive them both with the help of graphs, that means graphical method, and secondly by the analytical method. We are going to learn about the three equations of motion. So what are your three equations of motion? Here I have written for you three equations are V equals to U plus AT. Then S equals to ut plus half at square and v square equals to u square plus 2as. What is your v? Here v is your final velocity, u is your initial velocity, after that a is your acceleration, t is the time, but what time? Time for which your body is moving, and then S is your distance or displacement, we can say. Alright, so all these three equations we are going to learn today how to derive these equations. So students, we are going to derive these equations with the help of a graph. I have drawn over here. I will explain you how to draw this graph. So first, one more thing I will like to tell you, that when these equations we are deriving, always our body is uniformly accelerated. That means acceleration change nahi hota hai. Acceleration is always uniform. Alright students. So first we are going to learn about this graph. ये graph क्या है? Basically it is a velocity time graph. कौन सा ग्राफ है हमारा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ऑन द वाई एक्सिस आई हैव टेकन वेलोसिटी, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव टेकन टाइम, यूनिट इज सेकेंड. देन आवर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए. ये जो ए पॉइंट यहाँ है, यहाँ से हमारी बॉडी मूव करना शुरू करती है. कुछ ऐसे कर रही है, जीरो से नहीं कर रही है हमारी बॉडी मूव करना स्टार्ट. कहाँ से कर रही है? ए पॉइंट से. जब ए पॉइंट से हमारी बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, दैट टाइम इनिशियल वेलोसिटी वाज यू. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इट इज रिटन यू. व्हेन आवर बॉडी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, इनिशियल वेलोसिटी वाज यू. देन आफ्टर सम टाइम टी, ये हमारा टाइम एक्सिस है. यहाँ पे देखिए टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या हो गई है? टी टाइम के बाद हमने देखा कितनी हो गई है? स्मॉल वी. सो क्या पता चला हमारा? दैट आवर बॉडी स्टार्टेड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, देन आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी बिकम्स v. अच्छा, ये सब हमने क्या कर रखा? ये सब हमने डॉटेड लाइंस ड्रॉ इसलिए कर रखी है फॉर द ईज, ताकि हमें आसानी से वैल्यूज दिख जाए. इसके बाद हमने क्या किया? हमने कहा पॉइंट्स बना लेते हैं. दिस इज योर ए. AB is your basically the graph. Basically your graph is AB. After that हमने यहाँ पे C लिख लिया है, D, E. Basically this is the name given to the. So students, what I was telling you that A, B, C, D, E. We had marked the points. हमारा ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेवल कर रहा है? ऑब्जेक्ट ने U वेलोसिटी से स्टार्ट किया है. T टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? V हो गई है. ऑलराइट. सो अगर हम देखें OA की वैल्यू कितनी है? U. ऑलराइट. देन OC की वैल्यू कितनी है? कैपिटल स्मॉल v. देन OD की वैल्यू कितनी है? T. अच्छा, ये हमने क्या लिखा हुआ है? बिकॉज OAED एक रेक्टेंगल है, तो वट एवर इज द वैल्यू ऑफ OA, रेक्टेंगल में सामने की साइड्स इक्वल होती है, तो OA इज इक्वल टू ED. तो अगर ये हमारा पार्ट U है, तो ये भी हमारा इधर वाला पार्ट भी U होगा, इसलिए ऐसे लिखा है. अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं मैम U कैसे हो गया? U ऐसे हो गया. लेट अस सपोज U की वैल्यू आपकी 2 है, तो हमने कहा ये कितना है? आप बता देते मैम 2. V की वैल्यू कितनी है? 5. तो हम पूछते ये कितना है? मैम 5. दैट्स वाई. उसके बाद फिर OC की वैल्यू कितनी है? OC की वैल्यू हमारी स्मॉल v. तो अगर मैं आपसे पूछूं AC की वैल्यू कितनी है, आप मुझे बता देंगे मैम AC की वैल्यू कितनी है? V minus U. Like this we are doing. So I have told you that the value of AC is V minus U.
Now you came to know how we have drawn this graph. Now we are going to derive our equation. First we will derive our equation number first, v equals to u plus at. Alright students, first we are going to derive our first equation, v equals to u plus at. Here v is your final velocity, u is your initial velocity, a is your acceleration and t is your time. We all know that acceleration is what? This is your velocity time graph and acceleration is the slope of this graph. Slope क्या है? ये वाली लाइन हमारी रेड लाइन जो हमारा ग्राफ है. Alright, this is basically your acceleration. So acceleration क्या होता है हमारा? Slope. Alright, अच्छा slope क्या होता है? Slope के लिए हम लोग क्या पढ़ते चले आए हैं? y by x. क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय x. तो y एक्सिस पे क्या है हमारा? वेलोसिटी. x एक्सिस पे क्या है हमारा? टाइम. ऑलराइट, सो अगर यहाँ से हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ द दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हाट विल कम? स्लोप ऑफ द लाइन AB इक्वल्स टू, AB का स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? स्लोप विल कम EB डिवाइडेड बाय AE. ये कैसे लिखा? EB. Where is your EB? This is your EB and where is your AE? This is your AE. Y axis, X axis. All right. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. This is also correct. We can also write in place of EB we can write AC and in place of AE we can write OD also. Everything is correct. Alright students, so अब values put कर लेते हैं. What will be the value? If you can see EB or AC, इसकी value क्या है? It is your V minus U and AE या OD. This is equal to time T. ये वाली value क्या थी? Time T. Alright, now your acceleration is given by small a. तो अगर इसको हम ऐसे लिखें v माइनस यू ओवर टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया a इंटू टी इक्वल्स टू v माइनस यू. ये वाला u हम इधर लेके आए, व्हाट विल कम? at प्लस u इक्वल्स टू v. इंटरचेंज किया तो इट विल कम v इक्वल्स टू u प्लस at. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. Alright students, so you came to know how we are finding the first equation of motion with the help of graph. Alright, we have seen our first equation of motion. Now we are going to derive our second equation of motion, that is s equals to ut plus half at square, where s is your distance or displacement we can say. Alright, so how we are finding the distance or displacement with the help of velocity time graph? You all know, with the help of area under the curve. And which type of curve it is? ये वाला ग्राफ है हमारा. दिस रेड लाइन शोज द ग्राफ. तो रेड लाइन के नीचे का एरिया देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ और ऐसे अगर ये देखते हैं तो बेसिकली इस रेड लाइन के नीचे का जो एरिया है, अगर इसको ऐसे मिला ले और ऐसे मिला ले तो बेसिकली इट इज योर ट्रेपेजियम. और ट्रेपेजियम का नाम क्या है हमारे में लिख रखा है? दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज D. तो ये हमारा ट्रेपेजियम है. एंड वन मोर थिंग, इस ट्रेपेजियम को अगर आप ध्यान से देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज योर ट्राइंगल एंड सेकेंड इज योर रेक्टेंगल. व्हाट इज योर ट्राइंगल? ट्राइंगल इज ABE प्लस OAED. रेक्टेंगल बन गया एक हमारा OAED. So what I have told, we have to find the distance with the help of this velocity time graph. distance कैसे पता करते हैं? with the help of area under the curve. और ये कर्व क्या है? ये हमारा एक बेसिकली ट्रेपेजियम है. तो ट्रेपेजियम को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है. कैसे ब्रेक किया? एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल के फॉर्म में. ऑलराइट, सो नाउ कम मूविंग टू दिस साइड. I have written for you distance travelled equals to area of trapezium OABD, area of triangle ABE plus area of rectangle OAED. से आप चेक कर सकते हैं ये कहाँ पर है. area of triangle ABE, ABE कहाँ है? ABE.
ऑलराइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस, बेस क्या है इसका, AE इंटू हाइट, और हाइट क्या है इस ट्राइंगल की, BE और AB, कुछ भी लिख लेंगे एक ही बात है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAED, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हमारा ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ और साइड इंटू साइड ऑल्सो वी कैन से। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने क्या लिया, एक साइड ये वाली ले ली, एक साइड ये ले ली, वी कैन राइट AE मल्टीप्लाइड बाय ED ऑलराइट। नाउ 1/2 द वैल्यू ऑफ AE की वैल्यू कितनी है, T, एंड योर BE की वैल्यू कितनी है, V माइनस U, प्लस AE, अगेन AE इज T, देन ED कितनी है हमारी, स्मॉल u, ऑलराइट। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं व्हाट विल कम, प्लस UT। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां से हमें A लाना था, बट यहाँ पे तो कहीं हमें A दिख नहीं रहा है, तो वन थिंग यू विल डू, क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, इक्वेशन फर्स्ट अगर आपको याद हो तो इट वॉज V इक्वल्स टू U प्लस AT, ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, V माइनस U इक्वल्स टू AT, ऑलराइट। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट तो हमको क्या पता चला, V माइनस यू इक्वल्स टू 80, और यहां तक हमने क्या फाइंड आउट कर लिया था, अच्छा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वी आर गोइंग टू डिनोट बाय S, S लिख देते हैं, 1/2 V माइनस यू ओवर T, तो V माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं, 80, ऑलराइट। नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस दिस वैल्यू ओवर हियर, 1/2 और V माइनस यू की जगह क्या लिखते हैं, 80 मल्टीप्लाइड बाय T प्लस UT, तो यहां से हमारा क्या आया, 1/2 80 स्क्वायर प्लस UT, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ऑलराइट। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या प्रूव कर रहे थे, इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, सिमिलर थिंग वी हैव प्रूव्ड ओवर हियर, ऑलराइट। Alright students, now we are going to learn about the third equation of motion, that is your V square equals to U square plus 2AS. Again velocity and distance or displacement we can see here, alright. So again we are going to use this graph to find the displacement. Displacement कैसे find out करते हैं, सबको पता है अभी, area of the curve, और curve हमारा कौन सा है, curve is your trapezium, OABD. Now we are going to directly place the formula of area of trapezium. So distance we are going to find out, that is equal to the area of trapezium OABD. अब trapezium का area क्या होता है, 1/2 sum of parallel sides multiplied by distance between two parallel sides. Sum of parallel side, एक साइड हमारी ये है trapezium की और एक ये है OA and BD, multiplied by distance between two parallel sides, दोनों के बीच की distance कितनी है, that is AE, और वी कैन से OD, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑलराइट। कई कई पे फॉर्मूले में हाइट लिखा होता है, हाइट बेसिकली यही होती है, सम डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो अगर देखें तो हमने क्या लिखा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, दैट इज योर OD। इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, OA प्लस BD, OA क्या है आपका U एंड BD इज व्हाट, V, 1/2 OA क्या है आपका U और BD है आपका V मल्टीप्लाइड बाय OD, OD इज योर T। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास क्या आ गया, 1/2 U प्लस B इंटू T, बट इस वाली इक्वेशन में तो कहीं भी टाइम है ही नहीं, हमें टाइम नहीं चाहिए, दैट मीन्स टाइम हमको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो व्हाट वी विल डू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगेन
इक्वेशन फर्स्ट से हमको क्या पता है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहां से अगर हम t की वैल्यू फाइंड आउट करें तो व्हाट विल कम, t इक्वल्स टू v माइनस u और a डिनोमिनेटर में। तो यहां से अगर हम t की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इट विल कम v माइनस यू ओवर a। ऑलराइट, तो अब ये t की वैल्यू व्हाट आई विल डू, आई विल प्लेस ओवर हियर, तो इट विल कम s इक्वल्स टू 1/2 u प्लस v मल्टीप्लाइड बाय v माइनस u अपॉन a। अच्छा, u प्लस v को u प्लस v लिखे या v प्लस u, कोई फर्क नहीं, तो रीअरेंज कर ले अगर इसको, तो ऊपर क्या आ जाएगा v प्लस u, यहाँ पे आएगा v माइनस u और नीचे आ जाएगा ट्वाइस a। ध्यान से देखिए, v प्लस u, v माइनस u, a प्लस b, a माइनस b जैसा लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है ये आपका। ऑलराइट, तो यहां से हम क्या कर लेंगे इसको, s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a। ये हमें मिल गया, दैट 2a विल गो दिस साइड। ऑलराइट, तो 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हमारा आया। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर को इधर लेके आएंगे 2as प्लस u स्क्वायर, तो इसको रीअरेंज करके लिखें अगर तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रखिएगा, ये जो मोशन की इक्वेशंस हमने फाइंड आउट की है, दीज ऑल आर फ्रॉम द यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड बॉडी। एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा हमेशा।